اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنا ہم پر فرض قرار دیا ہے، تو نماز کے معنی کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ چند منٹ میں پوری ہی نماز کا جو معنی ہے، ترجمہ ہے، اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ جب آپ سمجھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز کے ساتھ آپ کی کیفیت بدلے گی، آپ کا تعلق بدلے گا، اور آپ اللہ تعالی کی معرفت اور قرب اور عبادت کی لذت کو صحیح معنی میں محسوس کر سکیں گے۔ تو بغیر تمہید کے ہم نماز کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلا جملہ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا معنی، مفہوم کیا ہوا؟ یعنی اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب شانوں کے حساب سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ رحمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس جتنی رحمت کسی اور کی نہیں ہے۔ طاقت کے لحاظ سے اللہ سب سے بڑا ہے، قدرت کے لحاظ سے اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو سادہ سا معنی تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی کیسے سب سے بڑا ہے؟ اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنی رحمت کے لحاظ سے، اپنے لشکروں کے لحاظ سے، اپنے فضل و کرم کے لحاظ سے، اپنی ساری شانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کی رحمت، اس کی طاقت، اس کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ پھر ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو ثنا کے اندر یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم تو پاک ہے اے اللہ۔ تو پاک ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے، تو فنا سے، کمزوریوں سے، ان سب چیزوں سے تو پاک ہے۔ سبحانک اللہم تو پاک ہے اے اللہ۔ وَبِحَمْدِكَ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ وَبِحَمْدِكَ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، یعنی تیری تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا تھوڑا مجھے جواب دیتے رہے تاکہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔ وَبِحَمْدِكَ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تبارک بہت ہی بلند ہے، بہت ہی برکت والا ہے، اسم کا نام تیرا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ بہت ہی بابرکت ہے نام تیرا، یعنی اے اللہ تیرا نام بہت ہی بابرکت ہے، بڑی ہی شانوں والا ہے نام تیرا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ بہت ہی بابرکت ہے اسم کا نام تیرا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ تعالی کا مطلب ہے بلند ہے، بلند و بالا ہے، عالی شان ہے۔ جدو کا بزرگی تیری، شان تیری، تیری شان، تیری بزرگی بہت ہی بلند و بالا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ بہت ہی اونچی ہے شان تیری، بزرگی تیری۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا إِلَٰهَ
गैरुका, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। आप भी सही कह रहे हैं, ये कह ले आप तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, या आप ये कहें तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, एक ही बात है। तो जब आप सना पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तू पाक है ऐ अल्लाह, यानी हर नक्स और हर ऐब से पाक है। व बिहम्दिका, हम तेरी हम्द व सना बयान करते हैं। व तआला जद्दुका, व तबारक अस्मुका, और बाबरकत है नाम तेरा। व तआला जद्दुका, और बुलंद बाला है बुजुर्गी और शान तेरी। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये सना हो गई। सना के फौरन बाद आप पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु का मतलब है मैं पनाह मांगता हूं या मैं पनाह मांगती हूं। बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से, और रजीम जो मरदूद है, जिसके ऊपर अल्लाह ने रहमत का, मरदूद का मतलब होता है जिस पर रहमत का दरवाजा बंद हो गया है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पूरे जुमले का तर्जमा होगा मैं पनाह मांगता हूं या मैं पनाह मांगती हूं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। या इस तरह माना करें, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं। अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूं, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, यानी या अल्लाह, शैतान जो दिल में वसवसे डालता है और मुझे तेरी रहमत से मायूस करता है या मुझे गुमराह करता है, मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूं। मुझे अपनी पनाह में रख, शैतान मुझे गुमराह न कर सके, मुझे भटका न सके, मुझे तेरी रहमत से मायूस न कर सके। मैं तेरी हर किस्म के शैतानी शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह असल में है बिस्मिल्लाह, इस्म का माना नाम। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, क्योंकि ये शुरू में होता है, सूरत के शुरू में ये कलमा होता है, इसलिए इसका माना है अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू करता हूं, मैं आगाज करता हूं। मैं अल्लाह के नाम के साथ आगाज करता हूं। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला है। मैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला है। तो सना के बाद और ताव्वुज़ व तस्मिया के बाद, यानी कि औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हम क्या चीज पढ़ते हैं? सूरतुल फातिहा। तो सूरतुल फातिहा का माना आप समझिए बहुत ही आसान लफ्जों में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और तमाम तर शुक्र उस अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तमाम तारीफें और तमाम तर शुक्र उस अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोजे जजा का मालिक है। रोजे जजा का मतलब, ये फारसी का लफ्ज मैंने बोला है, रोजे जजा का मतलब है वो दिन जब हर अमल का बदला दिया जाएगा। यानी ये दुनिया बदला मिलने की जगह नहीं है, ये काम करने की जगह है। इनाम मिलने और बदला मिलने की जगह आगे है, आखिरत के अंदर। तो जब हर अमल का बदला दिया जाएगा, आपने नमाज पढ़ी होगी, रोजा रखा होगा, कलमा पढ़ा होगा, आपने माँ बाप की खिदमत की होगी, जो भी आपने प्यासे को पानी पिलाया होगा, वो सब अमल का बदला आपको महशर के दिन मिलेगा। तो मालिक यौमिद्दीन का मतलब है कि अल्लाह ताला मालिक है उस दिन का जब हर अमल का बदला दिया जाएगा। रोजे जजा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें दिखा, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें चला। इहदिना का मतलब है हमें चला, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें दिखा,
अस्सिरात अलमुस्तकीम, सीधा रास्ता। यानी या अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा कि हमने कौन से रास्ते पे चलना है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनामात फरमाए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा कहर और गजब हुआ। वलद्दालीन, और या अल्लाह उन लोगों के रास्ते से भी बचा हमें जो गुमराह हो गए। तो गोया कि सना में भी अल्लाह की हम्दो सना है और अलहम्द शरीफ में दुआ भी है और अल्लाह की हम्दो सना भी है। पहली 4 आयतों में अल्लाह की हम्दो सना है कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये तो हम्दो सना है। और उसके बाद दुआ है, चूंकि सबसे कीमती दुआ हिदायत की दुआ है, इसलिए कुरान का आगाज इस दुआ से होता है कि मुसलमान अल्लाह से हर वक्त हिदायत की दुआएं मांगता है और सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता। इहदिना का मतलब है या अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा, यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत को हिदायत अता फरमा, हम सब इंसानों को हिदायत अता फरमा। इसमें हमारी पूरी फैमिली भी आती है, तमाम दोस्त भी आते हैं, हमारा खानदान भी आता है। या अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनामात फरमाए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हो गए। और आखिर में यह पढ़ना जरूरी है आमीन, जिसका माना है या अल्लाह कबूल फरमा। आमीन का क्या माना है? या अल्लाह कबूल फरमा, कबूल फरमा। तो एक छोटी सी सूरत का तर्जमा भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज के अंदर हमने वैसे तो ज्यादा सूरतें याद करनी चाहिए, लेकिन एक सूरत का तर्जमा हम समझ लेते हैं, सूरतुल इखलास का। क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि अलहम्द शरीफ पढ़ोगे तो पूरे कुरान का सवाब है, और सूरतुल इखलास पढ़ोगे तो 10 पारों का सुलुसुल कुरान का सवाब है। तो सूरतुल इखलास का तर्जमा यह है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए कि वो अल्लाह, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह बेमिसाल और यकता है। अहद का माना बेमिसाल, यकता, उस जैसा कोई और नहीं है कायनात के। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। बेनियाज का मतलब सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं, ये बेनियाज का मतलब। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है, यानी कि उसके कोई माँ बाप है, वो इन चीजों से पाक है। औलाद और माँ बाप होना ये फानी मखलूक के लिए है, अल्लाह ताला फना से पाक है। तो ना तो उसकी औलाद है और ना ही उसके माँ बाप है, इन चीजों से वो पाक है। वो बेमिसाल है, वो यकता है, वो मखलूक और इंसानों की तरह नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हमसर नहीं है, यानी कोई भी उसके बराबर नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का क्या माना हुआ? उसका कोई भी हमसर, हाँ, यानी कि हमसर का मतलब कोई भी उसके बराबर नहीं है। तो जब हम सना पढ़ लेते हैं, फिर तावुज़ और तस्मिया पढ़ लेते हैं, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर एक सूरत पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में जाते हैं। तो अल्लाहु अकबर का माना मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी उसकी रहमत सबसे बड़ी है, उसकी ताकत, कुदरत, अजमत सबसे बड़ी है। तो रकू में जाके हम ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल आज़ीम। सुब्हान का मतलब है हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। रब्बी, मेरा रब, यानी जिस रब की मैं इबादत कर रहा हूं वो रब हर ऐब और हर नक्स से पाक है। जिस रब के लिए मैं रकू कर रहा हूं, जिस रब के सामने मैं भी सजदा करने जा रहा हूं, वो मेरा रब हर ऐब से पाक है। यानी मेरे सोचने में ऐब हैं, मेरे अंदर ऐब हैं, मेरी समझ में ऐब हैं, मेरी फहम में ऐब हैं, लेकिन अल्लाह ताला के अंदर कोई ऐब नहीं। वो हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमजोरी से पाक है। सुब्हान रब्बी, पाक है, यानी हर कमजोरी और नक्स से पाक है। रब्बी, मेरा रब। अल अज़ीम, जो बड़ी अजमत वाला है। तो ये तस्बीह हम पढ़ते हैं रकू के अंदर कि पाक है मेरा रब जो बड़ी अजमत वाला है। फिर जब हम रकू से खड़े होते हैं तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा।
समी अल्लाह का मतलब है अल्लाह ने सुन ली है बात। समिया का माना सुन ली है, अल्लाह ने सुन ली है बात हर उस शख्स की, हामिदा जिसने उसकी हमद की। हर वो शख्स जो अल्लाह की हमद करता है, अल्लाह उसकी बात सुन रहा है, उसने उसकी बात सुन ली है। वो ये ना सोचे कि मैं तो रकू में भी अल्लाह की हमद सना कर रहा हूं, अलहम शरीफ में भी मैंने की है, सना में भी की है, तो क्या मेरे रब ने सुना है कि नहीं? तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली है अल्लाह ने बात हर उस शख्स की जिसने उसकी हमद की है। यानी अल्लाह तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी हमद सना को सुन रहा है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली है अल्लाह ने बात हर उस शख्स की जिसने उसकी हमद की। और फिर हम पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द, ऐ हमारे रब तेरे ही लिए, लका तेरे लिए हैं, अलहम्द तमाम की तमाम तारीफें, या अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हम सजदे में जाते हैं, और सजदे में हम क्या पढ़ते हैं? सजदे में हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला। क्या माना? सुबहान रब्बियल आला। माना क्या हुआ? सुबहान का माना हर ऐब से पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे आलीशान है। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे ऊंचा है, सबसे बरतर है, सबसे आलीशान है। ये तस्बीह पढ़ते हैं। तो ये तस्बीहात पढ़ने के बाद, रुकू करने के बाद, हम जब अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियात का माना समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर मुसलमान की चीज है। हम सारे मुसलमान हैं और हर रोज हमें अल्लाह ताला नमाज की सादत अता फरमाता है, और अल्लाह करे कि हम आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ते रहे। तो अत्तहियात के अंदर आप जो पढ़ते हैं उसको समझिए। बहुत ही अजीम कलिमात है जो हम अत्तहियात में पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, ये जो चार अल्फाज हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, इनका निचोड़ खुलासा ये है कि तमाम तरह की इबादतें अल्लाह ताला के लिए। इनका खुलासा क्या है? तमाम तरह की इबादतें अल्लाह ताला के लिए, हर तरह की इबादतों के लायक अल्लाह की जात है। लेकिन इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। अत्तहियात का माना है तमाम कौली इबादतें। अत्तहियात का मतलब है तमाम कौली इबादतों का मतलब है हम जुबान से जो इबादतें करते हैं। जैसे आप तस्बीहात पढ़ते हैं, आप नमाज के कलिमात पढ़ते हैं, आप कलमा शरीफ पढ़ते हैं, तो ये जो जुबान के साथ इबादत की जाती है, जितनी भी जुबान के साथ इबादतें की जाती हैं, वो भी अल्लाह ताला के लिए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि, तमाम कौली इबादतें जो जुबान से और बोल कर की जाती हैं, वो भी अल्लाह ताला के लिए हैं। वस्सलवातु, और तमाम फेली इबादतें भी अल्लाह ताला के लिए, यानी फेल से जो हम इबादतें करते हैं कि रकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, अपनी पेशानी जमीन पर रखते हैं, या तवाफ करते हैं खाना काबा का, ये हम अपने फेल से इबादत कर रहे हैं, ये इबादतें भी अल्लाह ताला के लिए। वत्तय्यिबात, और तमाम माली इबादतें भी अल्लाह ताला के लिए, जो आप ज़कात देते हैं, उशर देते हैं, जो आप सदका करते हैं, खैरात करते हैं, वो इबादतें भी किसके लिए हैं? अल्लाह ताला। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, तमाम जुबानी इबादतें, तमाम फेली इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अल्लाह की हम्द सना करने के बाद अब मुसलमान पढ़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। व रहमतुल्लाहि, और आप पर अल्लाह की रहमतें हो। व बरकातुहू, और अल्लाह की तरफ से आप पर बरकतें नाजिल हो। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बंदा अत्तहियात में सलाम करता है। क्या अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी, अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम हो, अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, और आप पर अल्लाह की रहमतें हों, व बरकातुहू, और आप पर बरकतें नाजिल हो। और फिर मुसलमान कहता है अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलामती नाजिल हो। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सलाम हो, अस्सलामु अलैना, हमें भी सलाम हो, हम पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती नाजिल हो। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जितने भी नेक बंदे हैं, इबाद आब्द की जमा है, अस्सालिहीन नेक लोग,
اور تمام نیک بندوں پر بھی اللہ کی طرف سے سلام نازل ہو اور رحمتیں اور برکت نازل ہو۔ یعنی اپنے لیے بھی انسان سلامتی کی دعا مانگتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کو سلام کرتا ہے، اور تمام نیک لوگوں کے لیے بھی سلام کرتا ہے نماز کے اندر۔ اور پھر مسلمان تحیات میں یہ پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی دوسرا اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، یعنی کامل بندے ہیں، بے مثال بندے ہیں، اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے کامل اور محبوب ترین بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب ہم یہ نصف آدھی التحیات ہو گئی، پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی، درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو درود شریف کا معنی سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ درود شریف کے الفاظ اور اس کا معنی یہ ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم کا معنی ہے اے اللہ، صلی علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ صلی علی محمد، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر بھی، حضور کی آل پر بھی رحمت نازل فرما، یعنی اپنے حبیب پر بھی رحمت نازل فرما اور اپنے حبیب کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحمت نازل کر اور آپ کی آل پاک پر بھی رحمت نازل کر۔ انک حمید مجید، یا اللہ بے شک تو لائق تعریف ہے، اور حمید تو لائق تعریف ہے، اور مجید تو بڑا بزرگ ہے۔ یا اللہ تو لائق تعریف ہے اور تو بڑا بزرگ ہے۔ اور پھر آگے ہم یہ درود شریف کو جاری رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر بھی برکتیں نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل کی اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں نازل کی۔ انک حمید مجید، بے شک تو لائق تعریف ہے، بڑا بزرگ ہے۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، یعنی مجھے پکا سچا سچا نمازی بنا، سچا نمازی بنا، سچا نمازی بنا۔ سچا نمازی کا مطلب میں سارے آداب بھی نماز کے پورے کروں، سنت کے مطابق نماز پڑھوں، اور سچا نمازی کا مطلب میرا باطن بھی حاضر ہو اور میں خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں اور پابندی سے بھی پڑھوں۔ تو یا اللہ مجھے سچا اور سچا نمازی بنا، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ان کو بھی سچا سچا نمازی بنا۔ یعنی کتنی قیمتی دعا ہے، ہم اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے بھی سچا اور سچا نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی سچا اور سچا نمازی بنا، وہ بھی نماز کو قائم کریں۔ اور ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم جتنی بھی دعائیں تجھ سے مانگے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، یعنی کتنی قیمتی دعا ہے۔
रब्बना फिरली, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और तमाम ईमान वालों को बख्श दे जब हिसाब का दिन कायम हो, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबको बख्शिश अता फरमा दे, तमाम ईमान वालों को भी, मुझे भी और मेरे वालिदैन को भी। तो इसमें औलाद के लिए भी रहमत है, हमारे लिए भी रहमत है। और फिर हम आखिरी जो अल्फाज पढ़ते हैं नमाज में वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाएं तरफ सलाम करते हैं, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। यानी कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ फरिश्ते भी होते हैं। 2 फरिश्ते तो हर वक्त हमारे साथ ड्यूटी पर हैं, किरामन कातिबीन, एक दाएं कंधे पर एक बाएं कंधे पर। तो उनको भी हम सलाम करते हैं, और दाएं तरफ रहने वाले जितने मुसलमान हैं उनको भी हम सलाम करते हैं। फिर बाएं तरफ जो फरिश्ते हैं और मुसलमान हैं उन सबको हम सलाम करते हैं। तो पहले एक तरफ मुंह फेरते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम्हें सलाम हो, तुम पर सलामती नाजिल हो, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत नाजिल हो। ऐ फरिश्तों, ऐ इंसानों, ऐ ईमान वालों जो इस तरफ हैं दाएं तरफ, तुम सब पर सलामती नाजिल हो। और फिर बाएं तरफ भी जो अल्लाह की मखलूकात हैं और फरिश्ते हैं उनको हम सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम पर भी सलाम हो और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो। इन अल्फाज के साथ हमारी नमाज पाए तकमील को पहुंचती है। तो हमें नमाज को समझ के पढ़ना चाहिए। अगर हम नमाज को उसके मानी के साथ पढ़ेंगे तो इसकी बहुत बरकत है। और फिर इंशाअल्लाह एक चीज बहुत ही जरूरी है जो अभी रहती है, वो है दुआए कनूत, क्योंकि दुआए कनूत बहुत ही कीमती दुआ है। मैं इंशाअल्लाह अब दुआए कनूत पर आपसे बात करूंगा कि भाई दुआए कनूत का माना भी आप जरूर समझे। अल्लाह ताला हमें समझकर मानी के साथ 5, 6, 8, 10 दफा आप नमाज का तर्जमा सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसका तर्जमा, अल्फाज आपके ज़हन में नक्श हो जाएंगे, फिर कैफियत भी नमाज की बदल जाएगी। इसके बाद फिर हम दुआए कनूत पर बात करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।